everyone see the shared screen? Can anyone डॉक्टर हफ्सा, आप switch their अपना cameras आपकी वॉइस on और आपका and वीडियो, let आपका me know? स्क्रीन Just शेयर raise your आपका बिल्कुल hand. ओके आ रहा है। Turn your camera on and raise your hand if you can see the shared screen. जी डॉक्टर हफ्सा, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है सब कुछ। Yes, we can. Okay, so I'll start. I'm Hafsa Majid, currently working as assistant professor and consultant chemical pathologist at the Department of Pathology, Aga Khan University. The topic which was given to me was to discuss the difference between precision and accuracy. So I thought we cannot cover this without first knowing what precision and accuracy are. So this is the outline of my presentation. We'll first discuss what is method validation, no different method validation studies. Then we'll talk about difference between precision and accuracy. And if time permits, we will design a method validation planner for NRI X, and then develop a report for accuracy method validation study for an accuracy experiment. So what is evaluation? So evaluation is determination of analytical performance characteristics of a new method or its error assessment. You assess the inherent analytical error related to and relate them to the medical or regulatory requirements and select effective QC procedure accordingly. So error if small is acceptable for medical use and to pass PT. And routine QC do not determine the magnitude of the inherent error of any system or method. So when you are establishing a new method, it's crucial that you perform method validation studies. QC you do after you have established the method or assay or instrument. While method validation studies, they are done before establishment of method. So routine QC जो है ना वो आपको सिस्टम का inherent error नहीं बताएगा इतना robust अंदाज में. So what is the scope of performance evaluation of methods? 5 होते हैं. You have to establish. It's usually applied to जो कि आप खुद develop कर रहे हैं. If there are any questions, I'll take them at the end. आप उसको chat में लिख सकते हैं. I'll not be seeing, मैं बार बार chat नहीं देखूंगी. I'll see it at the end of the session. So when you establish a new method, so आप बहुत ज़्यादा जो है वो vigorous method validation studies करते हैं, including accuracy, precision, analytical, sensitivity. You have to see के different जो Hill parameters हैं, hemolysis, icteria, lipemia. इसके अलावा मज़ीद और जो होते हैं फैक्टर्स बायोटिन वगैरह, इनकी वजह से ऐसे की स्पेसिफिसिटी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज करनी होती हैं. सो वो एस्टैब्लिश में आता है. देन कम्स द इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इज न्यू मेथड एनालिटिकल परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन. अगेन जो स्टैब्लिश आपने किया है उसकी जो है जो स्टडीज आप करते हैं. वैलिडेशन इज कंफर्मेशन बाय एग्जामिनेशन प्रोविजन ऑफ objective evidence that particular requirement of a test can fulfill. Verification is just verifying the manufacturer claims. This is what we do in laboratories. हमारे पास clinical laboratories में ये वाला जो है वो हम करते हैं कि verify करते हैं मैन्युफैक्चरर क्लेम्स को. हम खुद से हर चीज जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करते. So demonstrate is form of verification. Demonstrate is just performing. So once you establish for any test introduction, for any instrument introduction, for any new method introduction, what you have to do is कि certain steps होते हैं. First you have to establish your need. Then you will select your method, define the goals, perform your method verification, implement that method, quality control practices जो है वो implement करें,
and then comes routine analysis and result reporting. So what are the steps? Again, it's listed down here. So first, establishing need. लैब की आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कोई न्यू टेस्ट इंट्रोड्यूस करना है, या आपको अपनी जो है वो टर्न अराउंड टाइम कम करना है, या आपको अपना जो है एक्यूरेसी प्रिसिशन इम्प्रूव करनी है, आपको अपनी लेबर या रिएजेंट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करनी है, या ऑटोमेशन लेके आनी है। ये आपकी लैब की रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी वजह से आप जो है वो न्यू मेथड जो है वो उसकी तरफ जाते हैं, या न्यू इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी तरफ जाते हैं, या न्यू टेस्ट इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। देन देयर आर मेथड FDA रिक्वायरमेंट्स या मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट्स। जब जो है न्यू मेथड डेवलप हुआ, देन आपको FDA अप्रूवल के लिए एक्सटेंसिव स्टडीज करनी होती हैं ताकि यू कैन गेट FDA अप्रूवल। देन अच्छा, उसके अलावा फिर वेरिफिकेशन, जब आपने अपने पास कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है आप लेके आए न्यू लैब में, तो आपको मैन्युफैक्चर क्लेम्स जो है ना वो वेरीफाई करने होते हैं विद ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ओके, देन देयर आर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स कि जो आपके मेडिकल डिसीजन लेवल्स हैं उनके अराउंड कोई एरर ना हो। मसलन HbA1c, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन बाज़ मेथड्स जो हैं वो उनका इनहेरेंट एरर जो है वो ज़्यादा होता है। सो इनहेरेंट एरर अगर जो है वो उनका स्पेशली अराउंड लिमिट्स 6.5 पे आप डायबिटीज़ लेवल कर रहे हैं, अगर जो है उसका एरर ही जो है ना वो इतना ज़्यादा है, लाइक लेट सपोज उसका एरर 20% का है, तो वो जो है पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव दे सकता है वो मेथड। सो अगर इस किस्म की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर आप चेंज ऑफ मेथड की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी एक नीड हो गई। Absolute maximum error for a single patient cannot be predicted, but upper limit of error can be calculated. So इसके अलावा आपके performance standard of PT, अगर किसी कोई ऐसा टेस्ट है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं बट उसका PT नहीं है, तो then you bring a new test जिसका के जो कि PT प्रोवाइडर्स के लिस्ट में हो, न्यू मेथड सॉरी। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो ग्लूकोज हो सकता है माइक्रो लैब पे किसी छोटी सी किट, किसी रिसर्च यूज किट के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो आपका जो आप निकास, इकास, रिकास, निकैप, कैप, किसी में भी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं PT, उसमें उसका सैंपल जो है वो नहीं आता, तो देन यू स्विच टू अनदर मेथड। उस आपने जो PT प्रोवाइडर की लिस्ट देखी कि इसके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं ग्लूकोज के अंडर, तो आपने उसमें से कोई जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। देन you see the application characteristics. Application characteristics include आपका sample size, आपका sample type क्या होगा, कितना जो है वो sample volume required है for testing, throughput क्या होगा sample का, turnaround time क्या होगा, lab space requirement क्या है for any instrument, reagent storage facility क्या है, on board stability of the reagents क्या है, ये सारी online QC review की facilities हैं, कॉस्ट पर टेस्ट क्या बनती है, ये सारी एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। मेथड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? व्हेन यू सी कि उसका कोई केमिकल स्पेसिफिसिटी, क्लिनिकल सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू यूज प्राइमरी एक्वस स्टैंडर्ड, रिएजेंट टेम्परेचर, रिएक्शन टाइम, मेजरमेंट टाइम एंड मेजरमेंट अप्रोच, एंड कौन सा मेथड है, एंड पॉइंट है करने, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी मेथड कैरेक्टरिस्टिक। फिर आगे आपकी एनालिटिकल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक्चुअली इस सेशन का फोकस है। एनालिटिकल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, इसमें एक्यूरेसी, इम्प्रिसिशन लिमिट मल्टीपल है, एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन फर्स्ट 5। ये जो है ना, ये फर्स्ट 5 दे आर द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड मेथड वैलिडेशन स्टडीज: एक्यूरेसी, प्रिसिशन, limit of detection, working range, linearity. So method is selected on the base of the requirements. If अगर आपका जो है वो जो method performance characteristics आप वो select करेंगे, अगर pre existing method की आप जो है ना वो evaluation कर रहे हैं, it's usually done twice a year, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 3 experiments कर रहे होते हैं: accuracy, precision and linearity. linearity में आप जो है ना वो AMR भी उसी में cover कर लेते हैं।
देन अगर आप न्यू मेथड लेके आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन करते हैं मैन्युफैक्चर क्लेम्स की। प्रिसिशन एक्यूरेसी तो आप करते ही हैं। AMR is analytical measurement range. Analytical measurement range and CRR is clinical reportable range. AMR और CRR में डिफरेंस ये है कि AMR में आप कोई भी सैंपल में सैंपल ट्रीटमेंट नहीं होती है, और CRR जैसे आप डाइल्यूशन करके लगाते हैं, तो जहां तक आप मैक्सिमम वैल्यू करते हैं आफ्टर रिपोर्ट करते हैं आफ्टर डाइल्यूशन, दैट इज योर क्लिनिकल रिपोर्टेबल रेंज। लीनियरिटी, इसके अलावा कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन होती है। इट्स यूजुअली डन फॉर एनालाइट्स जहां पे आपके पास कैलिब्रेटर्स जो हैं वो 1 या 2 होते हैं। ऐसे कैलिब्रेटर्स, ऐसे एनालाइट्स जिसमें आपके पास मल्टीपल कैलिब्रेटर्स होते हैं, 3, 5, 6, 7, 10। अक्सर ड्रग्स वगैरह में आपने देखा होगा ज़्यादा कैलिब्रेटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है फिर आपको कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन की ट्वाइस अ ईयर नीड नहीं होती है। इसके अलावा रेफरेंस रेंज वेरिफिकेशन। रेफरेंस रेंज वेरिफिकेशन जब आप न्यू मेथड स्टैब्लिश करते हैं तो सिर्फ एक दफ़ा नीड होती है कि हेल्दी वॉलंटियर्स में आप उस एनालाइट को परफॉर्म करके और जो है वो उसकी रेंज को वेरीफाई करें, रिपोर्टेबल रेंज को, जो रेफरेंस रेंज को वेरीफाई करें। लेकिन ये हर एनालाइट के लिए नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एनालाइट्स के लिए करते हैं, क्योंकि मसलन हार्मोन्स जो हैं वो मल्टीपल चीज़ों से इफेक्ट हो रहे होते हैं। सो उन एनालाइट्स में फिर आपको रेफरेंस रेंज वेरिफिकेशन जब आप न्यू टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी होती, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एनालाइट्स में करनी होती है। लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन या एनालिटिकल सेंसिटिविटी। एनालिटिकल सेंसिटिविटी इज के लोएस्ट वैल्यू जो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकें, दैट इज एनालिटिकल सेंसिटिविटी। यूजुअली आपको हर एनालाइट के लिए नहीं करनी होती है, लेकिन जो आपके LDTs होते हैं, लेबोरेटरी डेवलप्ड टेस्ट, मसलन ऐसा कोई टेस्ट जिसका जैसे किट में लिखा हुआ है कि ये आप सीरम, प्लाज्मा और यूरिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप उस किट को CSF के ग्लूकोज को मेजर करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना वो आपका लैब डेवलप टेस्ट बन गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड नहीं किया है कि आप इसको CSF में यूज करें, लेकिन आप उसको CSF में यूज करें, तो फिर आपको थोड़ी ज्यादा जो है एक्सटेंसिव स्टडीज करनी होती है। उसमें एक एडिशन ये हो जाता है कि आपको एनालिटिकल सेंसिटिविटी, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन या लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो है ना उसको वेरीफाई करना है। सो ये हो गया। इसके अलावा जैसे मजीद LDTs में आपका एक तो यही मैट्रिक्स आ गया, दूसरा ये कि आपकी अगर FDA अप्रूव टेस्ट नहीं है या आपने जो है वो थोड़ा मॉडिफाई किया है, FDA अप्रूव टेस्ट था लेकिन आपने टेस्ट का मेथड मॉडिफाई कर लिया है, लाइक आपका अमाइनो एसिड्स आप मेजर कर रहे हैं और उसमें आपने जो है वो जो प्रोग्राम रिकमेंड किया था किट ने, आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। उस प्रोग्राम में आपने जो है वो उसका इल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आपने देखा कि उसके बाद आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ गई टेस्ट जो मेथड की, तो वो फिर अगेन आपका लैब डेवलप टेस्ट बन गया, क्योंकि आपने इसमें मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन से हट के कोई चीज कर ली। सो लिमिट ऑफ डिटेक्शन। इसके बाद कैरी ओवर हर एनालाइट में नहीं होता है, यूजुअली उन एनालाइट्स में या उन एनालाइजर्स पे होता है जहाँ पे आपका सैंपल में कंटेमिनेशन के चांसेस हो, एक सैंपल से दूसरे सैंपल में सेपरेट टिप्स नहीं यूज हो रही या सेपरेट सैंपल कप्स नहीं यूज हो रहे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में। और इसके अलावा जो हेवी एनालाइट्स होते हैं यूजुअली therapeutic drug monitoring के। So how to do method validation studies? We should not wing it randomly. We should consult appropriate guidelines, और जो guidelines करते हैं वो है CLSI के standards और method evaluation document series। separate जो है वो हर study के लिए उनकी एक guideline है। Then you use manufacturer package inserts, evaluation protocol manuals, and supplemental protocols. Okay, what is precision coming? Moving on to the actual method validation studies.
So first will be precision. Precision क्या है? Is the closeness of agreement between a series of measurement obtained from multiple sampling of same homogeneous sample under the prescribed condition. आपने एक ही सैंपल को एक ही कंडीशंस में मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो रन करके आप देखा कि सिमिलर वैल्यू आ रही है कि नहीं. So it's performed by repetitive sampling of the repetitive testing of the same sample. Repeatability होती है under the same operating conditions, and reproducibility is between two instruments, between two laboratories. अच्छा, precision can be intra-run, inter-run, and inter-instrument. It's usually done using homogeneous authentic sample. क्योंकि आपको एक ही सैंपल को मल्टीपल टाइम्स लगाना होता है, तो यूजुअली पेशेंट सैंपल तो इतना होता भी नहीं है, इसके अलावा अपनी बायोलॉजिकल वेरिएशन होती है. सो इंटरनल क्यूसी सैंपल्स जो है ना उनसे आप परफॉर्म करते हैं प्रिसिशन. सो इसकी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इट इंक्लूड्स मीन मेजरमेंट ऑफ मीन एसडी एंड सीवी. एक्सेप्टेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस, द लोअर द बेटर. आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर प्रोवाइडेड सीवी से कंपेयर कर सकते हैं. आपकी जो कैलकुलेटेड सीवी है, सॉरी क्यूमुलेटिव सीवी से कंपेयर कर सकते हैं जो आपकी सीवी है. इसके अलावा क्लाया वेस्टगार्ड की साइट पे आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगी ऑफ डिफरेंट एनालाइट्स और कितना जो है वो एक्सेप्टेबल सीवी है. It's usually monitored twice a year as part of method verification studies. So moving on to accuracy. Accuracy assess the systematic error, and optimally आप 40 different analytes को on spanning your entire analytical measurement range measure करते हैं. Statistical significance जो है वो minimum 20 samples पे achieve होती है. And your statistical analysis include calculating bias. Average bias should be less than the allowable limits. Then you calculate T. Your calculated T should be less than critical T. And then you compare using linear regression analysis, जिसमें slope, intercept और R calculate करते हैं. So older method जो था वो ये कि आप T test लगाते थे and calculated T को आप जो है ना वो कंपेयर करते थे विद दी क्रिटिकल टी. और अगर वो जो है कैलकुलेटेड टी लेस देन क्रिटिकल टी होता था तो देन यू से कि ये मेथड जो है ये एक्सेप्टेबल है. ओके, नाउ अब आप क्या करते हैं कि आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं जिसमें कि आप जो है ना वो स्लोप, इंटरसेप्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर करते हैं. So slope जो है it measures the proportional bias. It's often related to the calibration differences between the methods. Intercept is the constant bias. मैं next slides में दिखाऊंगी. I have a visual presentation of how to see slope and intercept. इसके अलावा जो है ना वो क्या जो है वो relationship होता है with the actual value. And R is correlation coefficient, how close points are to the actual line. And so there are different types of regression analysis. Regular regression hota hai, it assumes that there is no error in the the reference method or the method plotted on the x-axis. जो recommended hai, that is Deming regression, because it assumes that error exists both in the reference method, which is plotted on the x-axis, as well as the test method, जो कि y-axis पे plot होगा. So we'll skip this high level. So a better approach is कि आप जो है वो percent bias plot जो है उसको देखें, in which x-axis पे आपका जो टेस्ट मेथड है आप उसको प्लॉट करते हैं, and on y-axis
आप जो है ना टेस्ट मेथड माइनस रेफरेंस मेथड की डिफरेंस जो है वो प्लॉट करते हैं. सो इट टेल्स यू के जो एक्स आपका जो टेस्ट मेथड है वो कितना जो है उसमें बायस है कंपेयर टू द रेफरेंस मेथड. And when there is bias, you perform a larger study. So how do you evaluate a report for accuracy? You check the analyte, number of samples, are they sufficient? Is the coverage AMR को पूरी कवर कर रही हैं? अगर जो है आपका ग्लूकोज आप 30 से लेके 800 तक रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने जो मेथड वैलिडेशन स्टडी के लिए सैंपल्स लिए हैं वो 100 से लेके 200 के दरमियान जो है वो आपने 20 सैंपल्स ले लिए हैं, तो फिर वो आपका कंप्लीट रेंज को कवर नहीं कर रहा है, तो वो सफिशिएंट स्टडी नहीं हुई, आपको ऐड करना होंगे मजीद उसमें सैंपल्स. Distribution of the results over range is adequate. Coverage of reportable range is adequate. Correlation coefficient, सबसे पहले आप correlation coefficient check करते हैं. Ideally it should be 1. लेकिन जो है वो good जो correlation coefficient होता है is more than 0.8. Scatter plot बनाते हैं and then you see the trend line. Then you जो बाइस प्लॉट है, पर्सन बाइस प्लॉट ब्लेंड नॉटमेंट से जो बनाते हैं उसको देखते हैं, और आपकी की स्टैटिस्टिक्स होती हैं स्लोप, इंटरसेप्ट एंड मेडिकल डिसीजन पॉइंट्स. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं. सो मूविंग ऑन टू अनदर मेथड वैलिडेशन स्टडी, एनालिटिकल सेंसिटिविटी. इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक LOD और LOQ. LOQ इज लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, के आपका लोएस्ट जो वैल्यू आपका एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली दे सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपका एनालाइजर जो है वो ग्लूकोज 20 तक मेजर कर सकता है, लेकिन जब आप उसको रिपीटेडली मेजर करते हैं तो वो जो 20 की वैल्यू है उसको तो अक्सर कभी 18 दे रहा है, कभी 25 दे रहा है, लेकिन अगर कोई वैल्यू 23 तक आती है तो 23 को रिपीटेड वैल्यूज पे वो 23 दे सकता है, 23 या 22 से लेके 24 के दरमियान दे सकता है. सो जो लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन है इसके आपका कौन सा जो लोअर लेवल है आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, और लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज लोएस्ट लेवल कितना मेजर कर सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट. सो यूजुअली जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है इज मेजर्ड यूजिंग ब्लैंक सैंपल, और जो लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन या एनालिटिकल सेंसिटिविटी है इट्स मेजर्ड यूजिंग वेरी लो कंसंट्रेशन पेशेंट सैंपल, या फिर ज़्यादा बेहतर होता है कि स्टेबल सैंपल जो है वो कैलिब्रेटर का जो है वो आप सैंपल यूज़ करें. You perform it 20 times और उसके बाद फिर you check if all the if at least 18 readings out of the 20 are within the limits. Range validation studies, AMR is the analytical measurement range, कहाँ से कहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. क्लिनिकल रिपोर्टेबल रेंज कितना जो है ना वो मैक्सिमम आप रिपोर्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फेरेटिन आपका ऐसे 1500 तक लेट्स सपोज अपर लिमिट होती है, लेकिन आप उसको रिपोर्ट तो थाउजेंड्स एंड लैक्स में कर रहे होते हैं. सो आपकी रिपोर्टेबल रेंजेस आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल, डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन जो भी. सो लीनियरिटी 3 होती है, AMR और लीनियरिटी मेनली 3 to 5 सैंपल्स जो है आप परफॉर्म करते हैं. You can use commercially available linearity material, proficiency testing sample, patient sample with known result standards, calibrators. Okay, calibration verification is only required if आपका your assay have less than 2 samples. Otherwise आपको required नहीं होती calibration verification study. AMR should be verified every 6 months. And at the introduction of new test, new method, new instrument. CRR is a clinical reportable range, is a clinical decision by the lab and does not require experiments or revalidation. However, your dilution or concentration protocols must be specified in methods. अगर आपने जो है ना वो you have decided कि आप maximum जो dilution करेंगे
फेरेटिन के सैंपल्स की वो 200 टाइम्स तक करेंगे, तो आपकी डाइल्यूशन वेरिफिकेशन स्टडीज जो हैं वो फिर आपको फर्स्ट टाइम करके उसको अपने जो आपका जो भी फाइल होगी मेथड वैलिडेशन स्टडीज की फॉर दैट एनालाइट उसमें लगाना होगा फर्स्ट टाइम. So lab must define acceptability criteria specific for each method based on clinical requirements. Reference range, reference limit, reference intervals. It's not required. Ideally, every laboratory should establish its own reference limit, reference range, reference intervals. मगर जो है वो it's not feasible, it's not financially feasible कि आप जो है ना वो हर एनालाइट की रेफरेंस इंटरवल्स जो है ना वो डिराइव करें, इस्टेब्लिश करें. सो व्हाट एल्स इज एक्सेप्टेबल कि आपके जो मेथड वेरिफिकेशन में एट द टाइम ऑफ न्यू टेस्ट इंट्रोडक्शन आप रेफरेंस इंटरवल वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन वो भी आप सारे एनालाइट्स की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप जैसे मैंने अभी बताया हार्मोन्स जो हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं, तो उसमें आपको मेथड रेफरेंस इंटरवल वेरिफिकेशन स्टडीज जो है रिक्वायर्ड नहीं होती हैं. आपको सिर्फ रूटीन एनालाइट्स में जो है ना वन टाइम एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट परफॉर्म करनी होती है. एंड व्हाट यू डू इज टेक सैंपल्स फ्रॉम 20 हेल्दी वॉलंटियर्स, उनका टेस्ट लगाएं वो वाला, और अगर जो है वो 18 के रिजल्ट्स जो हैं और जो भी आप रेफरेंस रेंज डिफाइन की हुई थी मैन्युफैक्चरर ने या आपने जहां से भी ली है उसके अंदर आ रहे हैं 18 के रिजल्ट्स, तो इट्स एक्सेप्टेबल. और अगर जो है वो मोर देन 2 के आउटसाइड द लिमिट है तो देन ऐड अनदर 20 सैंपल, और उसके बाद फिर देखें कि अगर जो है वो 90% जो है वो विद इन रेफरेंस इंटरवल आ रहे हैं तो फिर वो अप्रूव हो गया. अगर मोर देन 5 आर आउटसाइड द प्रपोज्ड लिमिट्स, then you need to establish your own reference limits, reference intervals. So the difference between precision and accuracy, this is the difference between precision and accuracy. The picture on the very right, it shows a method which is not precise nor accurate. See, this method ki, the picture on the very right, it shows a method which has very low accuracy and a very low precision. And the method, the dartboard in the middle, it shows a method which is precise. Repeatedly आप measure कर रहे हैं, sample एक ही जगह एक ही value दे रहा है, but it's not accurate. Actual value से बहुत दूर इसकी value आ रही है. So it's high precision method, but low accuracy, but with low accuracy. So the picture on the very left, the bullseye picture on the very left, it shows a method which has high accuracy and high precision. So this is accuracy and precision. In qualitative terms, precision is repeatability, reproducibility, and in quantitative terms, it's a measure of the dispersion of random error, while accuracy is closeness of agreement of a single measurement with true value. And in quantitative terms, it comprises both random and systematic errors. So the samples used for the two studies, for precision, usually we use internal quality control samples. For accuracy, stable known concentration samples are used. You can use proficiency testing samples. You can use quality control samples. You can use known concentration patient samples. You can use standards. और अगर जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर you do method comparison, और आप जो है वो दो मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं. अगर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है कि 2 डिफरेंट मेथड पे सेम एनालाइट हो, एक क्रिएटिनिन एक डिफरेंट मेथड से भी, एक एंजाइमेटिक मेथड से भी हो रहा है, जेफिकाइनेटिक से भी हो रहा है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर व्हाट यू डू इज कि आप अपने पास जो है ना वो 20 सैंपल्स मेजर करें डिफरेंट कंसंट्रेशन के, स्पैनिंग योर एंटायर एनालिटिकल मेजरमेंट रेंज, और फिर वो 20 सैंपल्स बाहर रेफरेंस लैब भेज दें फॉर मेजरमेंट. So errors detected
precision measures the random error while accuracy systematic error को measure करता है. Instrumentation में accuracy में two instrument comparison आप करते हैं और you can send to the reference lab. Again, it's the repeatability, reproducibility से आप type of error random measure कर रहे हैं and from accuracy studies से आप constant and proportional error measure कर रहे हैं. So what is constant error? This is constant error. आपका x एक्सिस पे अगर एक वैल्यू जो है वो 1 आ रही है तो जो y एक्सिस पे मेथड है वो उस 1 को हमेशा ये +1 के साथ रिपोर्ट करेगा. 1 को वो 2 रिपोर्ट करेगा. अगर 3 रिपोर्ट कर रहा है आपका x एक्सिस तो वो जो आपका y एक्सिस पे जो टेस्ट मेथड है वो 4 रिपोर्ट करेगा. दिस इज कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट सिस्टमैटिक एरर. एंड प्रोपोर्शनल एरर इज कि जो आपकी वैल्यू है इसके प्रोपोर्शन में जो है वो जो भी आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है इसके प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनली जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा एरर. ओके, टू समराइज, you performed 20 samples repeated over several days. What CLSI recommends is कि जो है ना वो आपने 4 samples over 5 days, 4 times in over 5 days repeat कर लिया एग्जाम्पल को. लाइक आपने मंडे को लगाया, ट्यूसडे को लगाया, वेडनेसडे को लगाया, मंडे से लेके फ्राइडे तक 4 टाइम्स जो है ना एक ही सैंपल को लगाया. उसके बाद फिर वो 20 रीडिंग्स आ गई एंड देन यू कैलकुलेट your mean ST-CV and compare it with the manufacturer provided CV. फिर analytical sensitivity आ गई in which you take lowest calibrator, उसको 20 times लगाया. Calibrator की value already known होती है. अगर 18 values जो हैं वो accurate values आ गई या जो concentration दी हुई थी calibrator की उसके अराउंड आ गई तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल है सैंपल. लीनियरिटी एंड AMR में you take 3 to 5 calibrators covering your entire analytical measurement range and you perform them repeatedly within the same day. At least एक सैंपल को 3 दफा लगा लेते हैं. लाइक अगर आपने 3 सैंपल्स लिए हैं और उनको 3 टाइम्स लगाया है तो आपकी 9 मेजर्स आएंगे. और जो है उसमें आपको कैलिब्रेटर की वैल्यू ऑलरेडी नोन होती है तो वो आप चेक कर लेते हैं कि वैल्यू में कितना जो है ना वो बायस आया, ये सॉरी वैल्यूज में कितनी रिकवरी हुई. एक्सेप्टेबल रिकवरी जो है वो 95% से 105% के दरमियान होती है. एक्यूरेसी के लिए आपने 20 सैंपल्स लगाए और फिर उसको कंपेयर कर लिया बाय द रेफरेंस मेथड. बायस जो है वो मिनिमम बायस होना चाहिए. यू कैलकुलेट, यू परफॉर्म टी टेस्ट और उसको क्रिटिकल टी के साथ कंपेयर करते हैं कि कैलकुलेटेड टी शुड बी लेस देन क्रिटिकल टी. और यू परफॉर्म द रिग्रेशन एनालिसिस, स्लोप इंटरसेप्ट बायस मेजर करते हैं. स्लोप शुड बी आइडियली 1, bias should be 0, intercept should be 0 and correlation should be 1 ideally. Okay, so अब आप सबका टास्क है कि you have to design a method validation planner for an analyte. And we have 5 minutes for it. ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है. यू कैन डेवलप योर ओन प्लानर.
Okay, Umia Farwan Naqvi. Umia, I'll be showing you an example. मैं अभी जो है वो एक आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी और वी विल डिस्कस इट. सो जस्ट हैव टू ड्रॉ जो भी आपको जो है ना वो अप्रोप्रिएट लगे. आप अपने एक प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए अगर आप डिज़ाइन करती हैं तो आपको कौन सी स्टडीज़ करनी होंगी और जो है वो किस तरह से आप करेंगी, ये आपको डिफाइन करना है. या अगर आप जो है वो जैसे एनालाइट एक्स इज अ न्यू एनालाइट, आप उसके लिए जो है ना वो आपको मेथड वैलिडेशन प्लानर बनाना है, तो आप उसका जो है ना वो क्या क्या बनाएंगी अपने अपने लैब के लिए. सो 3 मिनट्स रह गए हैं. जस्ट अ क्विक एक्सरसाइज एक्चुअली जो है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अभी प्लान कर रहे हैं आप, आपके पास रिजल्ट्स नहीं होंगे, आप सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कौन सा एनालाइट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट पे सिलेक्ट कर रहे हैं, किस मेथड से सिलेक्ट कर रहे हैं, किस मैन्युफैक्चरर का है, क्या ऐसे रेंज है, क्या जो है ना वो उसके कितने क्यूसी कितने कंट्रोल्स हैं, कितने कैलिब्रेटर्स हैं, क्या जो है वो कंट्रोल्स की वैल्यूज हैं, क्या सीवीज हैं कंट्रोल के. अच्छा, किट की फेमिलियराइजेशन ऑफ द किट, उसके बारे में जो है ना आप थोड़ा सा उसमें प्लानर में डालते हैं कि कितना जो है ना वो ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी कितनी है उन रिएजेंट्स की, क्योंकि एक दफ़ा आपने किट खोल ली तो आपको मेथड वैलिडेशन स्टडी कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेनी है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है. आपकी किट कब आई है, कब एक्सपायर हो रही है, कब ओपन हुई है, कितनी ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी है, और जो है वो कौन कौन से आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और फिर किस एक्सपेरिमेंट के लिए आप कौन सा सैंपल यूज़ करेंगे, और जो है वो कितने टाइम्स उसको रिपीट करेंगे, कितने डेज पे रिपीट करेंगे, और फिर उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे. अगर जो है वो एक्सेप्टेबल हुआ तो कैसे कैसे आप उसको एक्सेप्टेबल कहेंगे. सो अमीजुल्ला, आपको अपनी लैब के लिए बनाना है, अपनी लैब की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए. Okay, Shumaila Khamar have made a method validation planner for HB. Shumaila, can you share your screen with us? Burhan, can you let Shumaila share her screen? Shumaila Khamar. जी डॉक्टर हफ्सा कर सकती हैं शेयर. Can you give her the rights to share her screen? कोई भी एक जो है वो अपना जो आपने HB का बनाया हुआ है, HB का ही जो है मेथड वैलिडेशन प्लानर जो है ना वो शेयर कर लें. Hussain Shahzad, you can take the slides as well as recording from Dr. Arshi and her team. Okay, QAMC Bhavalpur, make it into a planner. ये तो अभी सिर्फ टॉपिक्स है ना. ये सब बोल के हम अगर किसी को दे देंगे, लेट्स सपोज जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट कम्स टू यू और आपने उसको जो है ना ये सब बता दिया, तो वो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एन मेथड वैलिडेशन स्टडी. आपको पूरा उसको एक प्लान बना के देना होगा ताकि वो उसको फॉलो करते हुए कंप्लीट करके आपको रिजल्ट्स दिखा सके. Okay, Shmaila cannot share. Okay, so 5 minutes हो गए. I'll share my own planner. Can you all see the screen? Can you see the screen? जी डॉक्टर हफ्सा आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है. Burhan, can you? जी डॉक्टर हफ्सा आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है. Okay. So next, okay, हो गया. So this is just a basic planner, analytical planner for an analyte measured by XYZ method on ABC instrument. Probably इसमें जो अभी बहुत सारी चीज़ें हमने बात की वो इसमें नहीं है, तो you'll have to add them. मसलन कि आपका SA की रेंज क्या है, AMR आपकी यहाँ पे लिखी हुई होनी चाहिए कि कितनी कितनी AMR है, कितने कैलिब्रेटर्स अवेलेबल हैं, कितने QCs हैं, किट का क्या है स्टेटस,
सो कौन सी मेथड वैलिडेशन स्टडीज आप इसमें करेंगे, कौन से स्पेसिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से करेंगे. लाइक फॉर AMR एंड लिनियरिटी यू विल टेक कैलिब्रेटर. आपने अपना डिफाइन कर दिया कि हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज 3 कैलिब्रेटर्स हैं या 4 कैलिब्रेटर्स हैं. तो आपने जो है ना वो आपने कहा कि मैं 4 कैलिब्रेटर्स लगाऊंगी और 3 रेप्लिकेट्स पर स्पेसिमेंट. तो 3 into 4 12 आपके टेस्ट हो गए. और उसके बाद फॉर लीनियरिटी अगर आपका जो है ना यू आर एबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द स्कैटर प्लॉट. और AMR is if two conditions are met, the assigned value of the lowest and highest is within the. एक्चुअली आप रिकवरी देख रहे होते हैं इसमें. आप रिकवरी जो है अगर आपकी 195% से 105% आ रही है तो फिर आप जो है उसमें एक्सेप्टेबल लिख देते हैं. ऑल्टरनेट इसी में जो है वो एक्चुअली EP इवैल्यूएटर में आपके एक्यूरेसी भी जो है वो इसी पे मेजर करके देता है क्योंकि वो रिकवरीज मेजर कर रहा होता है. And it also reports slope, intercept and correlation coefficient. यहाँ पे जो आपका ये एक्यूरेसी है ये आपको इसकी सेपरेट स्टडी करनी होती है. प्रिसिशन के लिए आपने कंट्रोल सैंपल लिया, वन लेवल ऑफ कंट्रोल, या आपको पूरा डिफाइन करना होगा कि लेवल 2 कंट्रोल ले रहे हैं, लेवल 3 कंट्रोल ले रहे हैं, उसकी क्या कंसंट्रेशन जो है या क्या रेंज है. 20 replicates चलाए for in quadruplicates for 5 days. फिर आपने mean SDCV calculate की, precision passes if CV calculated is less than the manufacturer CV. Reference range verification के लिए ये fecal calprotectin का है. So healthy volunteers का 20 specimens. And reference range is verified if 18 out of 20 samples fall within the manufacturer defined reference range. Specificity interference study regulatory bodies की mandatory requirements में नहीं आती है. So we usually keep manufacturer provided जो भी interference studies and specific studies हैं और literature जो है ना वो उस analyte की method validation की file में लगा देते हैं. So alternate method comparison अगर जो है इसका like fecal calprotectin का कोई second method नहीं था तो 8 negative and 12 positive samples were sent for can be sent for measurement to reference laboratory. और फिर आप उसकी concordance measure कर लेते हैं. क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं. बाज जो एनालाइट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज उनके एसेज होते हैं. लाइक क्रिएटिनिन का एसे जो है वो स्टैंडर्डाइज टू सर्टेन स्टैंडर्ड होता है तकरीबन तमाम मैन्युफैक्चरर्स का. तो उसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें आप स्लोप, इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर करते हैं. लेकिन जहाँ पे ऐसे एनालाइट्स हों जिसमें आपका जो मेथड है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है तो अगर जो है आपकी वैल्यू लेट सपोज आप जो है वो एक पेशेंट को 10 दे रहे हैं और आपने रेफरेंस लैब भेजा वो उसको 30 दे रहा है लेकिन दोनों की एसए के रेफरेंस इंटरवल के हिसाब से नेगेटिव हैं वो वैल्यूज. तो क्योंकि ये एसे स्टैंडर्डाइज नहीं है तो इसके इनमें डिफरेंस आ सकता है. तो ऐसी कंडीशन में फिर आप स्लोप, इंटरसेप्ट और कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस नहीं लगाएंगे. फिर आप कंकॉर्डेंस मेजर करेंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये देखेंगे कि जो आपने 12 सैंपल्स पॉजिटिव जो है परफॉर्म किए थे क्या रेफरेंस लैब ने उनको भी पॉजिटिव दिया है, क्या जो आपने 8 नेगेटिव सैंपल्स दिए थे क्या रेफरेंस लैब ने भी उनको नेगेटिव दिया है. अगर सब मीट कर रहे हैं तो 100% कंकॉर्डेंस, एटलीस्ट 90% कंकॉर्डेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है. So our next exercise is we will be developing an Excel sheet for accuracy, assessment of bias, and then apply t-test and regression analysis. क्या आप सब अपने अपने PCs पे हैं? If not, then I'll just so this is एक्सेल शीट जिसमें आपने पहले डिफाइन किया कि आप कौन से एनालाइट के लिए कर रहे हैं.
मेथड कंपैरिजन की शीट बना रहे हैं आप, सो कौन से 2 मेथड्स की बना रहे हैं? आप एनालाइट एक्स को परफॉर्म करेंगे फर्स्ट बाय एबीसी मेथड एंड देन बाय XYZ मेथड। XYZ मेथड जो है वो आपका टेस्ट मेथड है। टेस्ट मेथड इज न्यू जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेथड वो, एंड ABC इज योर रेफरेंस मेथड जो कि वैलिडेटेड है कि इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यूज। अगर जो है आप ओल्ड मेथड वर्सेस न्यू मेथड कर रहे होते हैं कि आप न्यू मेथड लेके आ रहे हैं, तो फिर आप मेथड वैलिडेशन स्टडी कर रहे हैं, उस कंडीशन में फिर आप जो आपका ओल्डर मेथड है उसको रेफरेंस मेथड लेते हैं या ABC मेथड लेंगे, और जो आपका न्यू मेथड आ रहा है उसको आप टेस्ट मेथड लेंगे या XYZ मेथड लेंगे। ओके, देन यू एड वैल्यूज टू इट। इसमें आपका बायस जो है वो पहले कैलकुलेट होगा। लेट्स सपोज मैं डालती हूँ इसकी रेफरेंस मेथड से 10 थी, से 11 थी, तो पहले तो इसका जो है वो आपको इसमें एवरेज ऑफ आर, ये सारे का एवरेज ये आ रहा है इसमें, एंड देन एवरेज ऑफ टी और योर टेस्ट मेथड, then you derive bias. Bias is just test method, reference method minus test method. See B30 minus B29, so reference method minus test method. इसकी जो है वो वैल्यू इज बायस। बायस की वैल्यू से फिर आप जो है ना वो टी जो टी है वो टी टेस्ट का टी वो कैलकुलेट करते हैं, एंड देन यू सी के जो आपका कैलकुलेटेड टी है, ये कैलकुलेटेड टी ड्राइव हो गया है, ये कंपेयर करते हैं आप विद योर कैलकुलेटेड क्रिटिकल टी। यहाँ पे जो है वो सो योर कैलकुलेटेड टी, हमने अभी जो वैल्यूज डाली थी एक एनालाइजर पे हमने सैंपल्स 1 2 3 4 5 6 लगाए, और वही सेम जो है हमने एनालाइजर टी पे भी लगा दिए। उनकी वैल्यूज जो है ना हमने इसमें पुट की, तो उसकी जो कैलकुलेटेड टी है वो 1.45 आ रहा है, जो सॉरी क्रिटिकल टी जो है वो 2.09 है। तो ये आपका जो कैलकुलेटेड टी है इज लेस देन योर क्रिटिकल टी, सो इट्स एक्सेप्टेबल। आपने यहाँ पे जो है ना वो लिख दिया कि एक्सेप्टेबल एनालाइट एक्स कैन बी परफॉर्म्ड या मेजर्ड बाय मेथड ABC, या जो आपका टेस्ट मेथड था। यहाँ पे आपने लिख दिया कि कैलकुलेटेड टी इज लेस देन क्रिटिकल टी, सो एक्सेप्टेबल। ये आपकी जो है ये एक रिपोर्ट तैयार होगी, यू साइन इट, योर नेम एंड योर डेट, एंड दैट्स इट। So this is the end of my presentation. Interpretation depends heavily on the quality of the comparison methods and the samples used. Garbage in, garbage out. अगर आपके samples सही नहीं है, या आपका method सही नहीं है, या आपका statistical analysis का method सही नहीं है, तो you'll not be getting a good report जिसको कि आप जो है ना वो clinically acceptable भी हो। Moving on to questions. Can we add allowable error? Sorry, can we add allowable error in this study? Yes.
आप जो है वो अलाउबल एरर से भी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। अलाउबल एरर इज टोटल एरर बोथ, जिसमें रैंडम और सिस्टमेटिक दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर आप प्रिसिशन से उसको जो है ना वो कंपेयर कर रहे हैं तो आप 1/3 द अलाउबल एरर अपना एक्सेप्टेबल लिमिट रखिएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन AMR and CRR and explained by महेश। एनालिटिकल मेजरमेंट रेंज है कि जिसमें आप सैंपल को बगैर कुछ डाइल्यूट किए, बगैर किसी चीज़ के, बगैर कुछ किए ना, कंसनट्रेट या डाइल्यूट किए बगैर जहाँ तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से। मसलन ग्लूकोज जो है यूजुअली 30 से लेके 500 तक आप आराम से हर एनालाइजर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर है तो फिर आपका मैन्युफैक्चरर या फेरेटिन है, जैसे आप 100 से लेके आप 1500 तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पेशेंट है, स्पेशली जो ट्रांसफ्यूजन वाले या और जो पेशेंट होते हैं, उनका जो है वो फेरेटिन मजीद हाई होता है। तो आप सैंपल को ट्रीट करते हैं, आप उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो वो जो फिर डाइल्यूशन के बाद जो रिपोर्टेबल रेंज बनी वो क्लिनिकल रिपोर्टेबल रेंज हो गई। ओके, एंड एक्सप्लेन बायस। बायस इज नथिंग, बायस इज डिफरेंस। आपका जो दो मेथड्स का जो एवरेज बना उसका डिफरेंस को बायस कहते हैं। काइंडली एक्सप्लेन टी वैल्यू। टी वैल्यू इज स्टैटिस्टिक्स, मीन कंपैरिजन को जो है वो टी स्टैटिस्टिक्स टी टेस्ट से करते हैं। टी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल टी जो है आपका ऑलरेडी डिफाइंड होता है, आपके पास टेबल्स होंगे डिफरेंट बुक्स में। आप अपने जितने आपने सैंपल्स एनालाइज किए हैं उसको देखते हुए फिर आप अपना क्रिटिकल टी निकाल सकते हैं। If labs are registered with linearity, that doesn't require AMR verification every 6 months. Mohammad Ziaul Abedin, every 6 months आपको linearity और AMR verification करनी होती है। एक चीज होती है AMR linearity, आपने कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन अलग से एक स्टडी होती है, वो उन कंडीशंस में रिक्वायर्ड है जब आपका लेस देन 3 कैलिब्रेटर्स हों किसी ऐसे के। काइंडली एस्टैब्लिश नीड बाय लैब रिक्वायर्ड। सॉरी सबा मेहर, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। हाउ कैन वी वैलिडेट ICT मेथड, immunochromatography and parameters to validate in qualitative method? qualitative methods में फिर आप slope intercepts वगैरह यूज नहीं करते हैं, आप जो है वो उसका एक्यूरेसी में आप कंकॉर्डेंस यूज करते हैं। लाइक अगर आपका ICT उसको नेगेटिव दे रहा है और अगर कोई डिफरेंट मेथड, आई डोंट नो, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कोई भी जो है वो उसको नेगेटिव दे रहा है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से कंपेयर करते हैं और आप उसमें कंकॉर्डेंस मेजर करते हैं। इन रिग्रेशन एनालिसिस व्हाट इज द एक्सेप्टेबल R वैल्यू? R इज कोरिलेशन कोफिशिएंट, आइडियली 1 होना चाहिए। एक्सेप्टेबल हम 0.8 से अबव को लेते हैं। Okay. What's the difference between AMR and instrument limitations? Analytical measurement range is कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशंस इज डिफरेंट थिंग। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन यानी कि इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो, I don't know, I don't understand your question. Infinix S5. Okay, Shumaila Kamal, is in regression analysis, what is acceptable R? I've already answered it. What is medical decision point? The medical decision point is जहाँ पे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, मसलन फास्टिंग में फास्टिंग ग्लूकोज का 126 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप डायबिटीज की डायग्नोसिस दे रहे होते हैं। इसी तरह से जो है HbA1c में 6.5 का कट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर जो है वो लेबल कर रहे हैं। वो डिसीजन पॉइंट, वो वैल्यूज रिजल्ट्स जिस पे कि आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। मसलन क्रिएटिनिन का कोई सर्टेन वैल्यू, लेट्स सपोज, आई डोंट नो, बट हो सकता है 5 पे जो है वो आप जो है वो
डिसीजन ले रहे हैं कि डायलिसिस हो जाना चाहिए पेशेंट का। सो मेडिकल डिसीजन पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज जिस पे कि आप कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल डिसीजन ले लेते हैं, क्लिनिकल जजमेंट जिस पे आप लेते हैं। ओके, काइंडली एक्सप्लेन टी वैल्यू। टी वैल्यू इज नथिंग। आपने SPSS में देखा होगा टी स्टैटिस्टिक्स होती हैं। टी स्टैटिस्टिक्स इज मीन कंपैरिजन, दो जो है क्वांटिटेटिव वैल्यूज के दरमियान जो है वो मीन्स का कंपैरिजन। प्लीज डिफाइन PT। PT इज प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का प्रॉब्ली नेक्स्ट उसमें है, आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। So it will be discussed more in those sessions. Difference between AMR, CRR, I've already described it. In which condition TNF value not effective to compare to. TNF values are usually are older methods of statistical of method comparison. अब जो है वो आप यू यूज रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें कि एक्सेप्टेबल होता है कि आप डेमिंग रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो यूज करें। और आप को इसमें मसला भी नहीं होता है, इसमें आप जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो आप एक्सेल पे कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि एक्सेल पे आप कैसे कर सकते हैं कि ये आपने अपनी जो दो मेथड्स की वैल्यूज थी ये आपने प्लॉट की, सही। ऑलरेडी इस पे बना हुआ है, हम दोबारा से बना लेते हैं। हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, आपने कम ऑन इसको इंसर्ट में जाके आपने सिर्फ और सिर्फ स्कैटर प्लॉट बना देना है। वैल्यूज को सिलेक्ट करते हुए स्कैटर प्लॉट पे फिर आप जो है ना लाइन ऑफ एक्चुअल जो ये आ गया आपका, लाइंस इसमें से हटा देते हैं ताकि हमें दिखना शुरू हो जाए। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है रिग्रेशन एनालिसिस का, वेयर जो आपका y है ना, y वाज द टेस्ट मेथड। y एक्सिस में हमेशा आपका टेस्ट मेथड या न्यू मेथड होता है, x एक्सिस में हमेशा आपका जो है वो रेफरेंस मेथड या एग्जिस्टिंग मेथड होता है। सो y जो है उसका आपको रिग्रेशन एनालिसिस दे रहा है, ये बता रहे हैं आपका R2 इज योर कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बता रहा है कि आपका 0.5 है, अच्छा नहीं है। 1.168x इज द स्लोप वैल्यू, स्लोप आइडियली 1 होना चाहिए, ये 1.1 यहाँ पे आ रहा है। और -0.376 ये जो है आपका इंटरसेप्ट है। सो इस तरह से आप जो है ना रिग्रेशन एनालिसिस आराम से उस पर कर सकते हैं एक्सेल पे। बस, थैंक यू। डॉक्टर अर्शी, ओवर टू यू। Thank you so much, Dr. Hafsa. You shared different vision of precision and accuracy. Dr. Arshi, we cannot hear you. Hello, are you hearing? Hello, Dr. Hafsa, are you hearing? मैडम अच्छी आपकी आवाज क्लियर है। डॉक्टर हफ्सा, मेरे ख्याल से शायद आपका वॉइस वॉल्यूम जो है वो डाउन हुआ है, तो काइंडली आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा आप कीजिएगा। आपके माइक बिल्कुल ओके। मैडम अच्छी आपकी वॉइस बिल्कुल ओके आ रही है। Dr. Hafsa, are you hearing my voice? डॉक्टर हफ्सा, बुरहान जरा डॉक्टर हफ्सा से प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिए, एक टाइप कीजिएगा मैसेज इनको। जी डॉक्टर, मैं डॉक्टर हफ्सा को कॉल करता हूँ।
Dr. Hafsa, are you hearing my voice? Are you hearing? Are you hearing my voice? नहीं नहीं आ रही है, आ रही है. Yes, I can hear you now. Thank you. Thank you so much. Very, very informative and excellent lecture, but it's a bit difficult for participants because it is not usual practices in our lab at the level of both technologists and consultants. So it is it's simple as because we are receiving a lots of messages. What is the difference between intercity, inter laboratory or intra laboratory precision and how to calculate. So because it's difficult in 40 minutes lecture, we will give you all flavors of every step by step, because I know, I understand all of your problem, but Dr. Hafsa and me and Shabnam will try to give you some exercises on video based on Google Classroom. We will share step by step. First one is I'm sure you have lots of problem in measuring the accuracy and precision, because now we are used to, अभी तक हम सिर्फ used to थे कि accuracy और precision सिर्फ इस हद तक होती थी कि target पे value जो है hit करेगी तो accuracy होगी, और within the range 1s और 2s होगी तो it is जो है ना हम precision measure करेंगे. लेकिन हम जब lab में काम करते हैं तो lab में हमें method validation verification के लिए QC ये these parameters accuracy और precision measure करनी पड़ती है. तो ये थोड़ा सा जो है upper the level of the participants है, लेकिन we will try, we all three me, Shabnam and Hafsa will try best कि हम छोटी छोटी examples आपके साथ share करें और उसको छोटी छोटी presentations जो है उसमें, ताकि एक एक segments पे आपको जो है practically आप जो है calculate कर सकें कि कैसे precision measure करनी है. अच्छा, एक और take home message जो है वो ये है कि अब इस वक्त जिनकी लैब्स में जो इक्विपमेंट मौजूद हैं, आप आज एक काम ये कीजिएगा कि अपनी अपनी लैब्स में जाके उन पैरामीटर्स पे डेली कंट्रोल्स रन होते हैं आपके ना, तो डेली जो कंट्रोल रन होते हैं उससे कम से कम जो है, और या ऑपरेटर मैनुअल जरूर खोलें कि उसके अंदर एनालिसिस मेजरमेंट रेंज होती है. ठीक है, एक आपको डॉक्टर, जो ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि एनालिसिस मेजरमेंट रेंज और क्लिनिकल रेंज में कि कैसे उसको जो है ना डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको देखें अपना मैनुअल देखने की आदत होनी चाहिए कि मैनुअल में जो ऑपरेटर मैनुअल है उसमें क्या रेंज आपकी दी गई है, जो डॉक्यूमेंट की गई है आपके मैन्युफैक्चरर ने, कि आपके पास ये इतने, लेट सपोज कि एचबी है कि एचबी की डिटेक्शन लिमिट ये है, लिनियरिटी ये है. तो पहले उन टर्म्स को थोड़ा जो है खुद भी पढ़ें और देखें, मैनुअल में देखें, और उसके बाद जो कंट्रोल वैल्यूज हैं, लेट सपोज कि अगर कोई हेमेटोलॉजी के लैब में काम कर रहा है या क्लिनिकल केमिस्ट्री के लैब में, तो कोई एक पैरामीटर जो 20 डेज के कंट्रोल रन हुए हो ग्लूकोज के या आपके, क्योंकि बिकॉज कंट्रोल नोन वैल्यूज हैं आपके पास ना, और उसकी रेंज भी होती है, तो आप उसको पहले जो कंट्रोल्स आपके रन हो रहे हैं वो देखें और उसकी प्रिसिशन कैलकुलेट कर लीजिए. प्रिसिशन जो है कैलकुलेट करने के लिए एसडी और सीवी के जो है आपको डॉक्टर शबनम ने बताई थी, और सीवीआर आप कैलकुलेट पहले उसको ट्राई कीजिए. वहां तक कैलकुलेट करके फिर हम आपको मजीद जो है एक्सरसाइजेज डॉक्टर हफ्सा और शबनम एंड मी कि हम आपको देंगे, और उस पर आपको तरीका भी बताएंगे. जैसे अभी एक्सेल की शीट बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा जो है अबव द स्टैंडर्ड है, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लास तक इस जो है यू विल बी एबल टू कैलकुलेट your CV or your SD or for different analyte. अगर आप 2-3 के लिए भी जो है आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप जो है तमाम एनालाइट्स जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम डॉक्टर हफ्सा, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. CV और एक्यूरेसी और प्रिसिशन को आपने कम से कम थोड़ा सा आगे, वो जो टारगेट्स होते थे ना, बस सिर्फ ये डेफिनेशन है, इसके आगे क्या चीज है ये एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपको क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज द नेम
ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हम भी आपको यूज टू करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है चीजें, जो CLSI गाइडलाइन का लिंक उन्होंने शेयर किया था, जहां आपको तमाम जो है SD और CVs जो है आपको गिवन है कि ये गिवन है बाय इंटरनेशनल लिटरेचर, ये स्टैंडर्ड ये कहता है इस एनालाइट के लिए, और जो आपने कैलकुलेट किए उसको उससे कंपेयर करने के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ी हम करते हैं, तो फिर इस तरह से मिलके जो है ये असाइनमेंट्स उसको रेडी करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.